بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بہت زیادہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوبرز مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اس بارے میں کچھ بتائیں، کچھ کمنٹس دیں، کیا رائے ہے آپ کی، کیا ایسے موقع پہ کیا کہنا چاہیے۔ اب کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو میری مجبوری بن چکی ہے کہ مجھے اس پہ اپنا بیان دینا پڑتا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میں اگر مستقل کوئی چیز ریکارڈ نہ کرواؤں تو یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ میرے پرانے بیانات اٹھا کے اس جدید واقعے پر منطبق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوٹیوبرز کو تو چاہیے ہوتے ہیں، ویورشپ چاہیے ہوتی ہے ان کو۔ اس کا نقصان بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا پرانا بیان موجودہ واقعے سے متعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کو اٹھا کے موجودہ واقعے پہ لوگ چسپاں کر دیتے ہیں، اس سے بعض دفعہ غلط پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات کسی خاص موقع پہ کہی ہے، وہ اس موقع پہ چلا دینا اس کو، پھر میں ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے ہمیشہ، خود اس کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ جو نشانیاں اللہ دکھاتے ہیں نا، ایکسیڈنٹلی کوئی مر جاتا ہے، اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ انسان کی ذات کے اندر کی نشانی ہے، اور اللہ یہ نشانیاں ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم عبرت کی آنکھیں کھولیں، اس دنیا سے ہم دل لگانا چھوڑیں۔ آپ سوچئے کوئی مشہور اداکار ہو، اور وہ بھی انڈیا کا ہو، اور جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہوں، جس کی فلمیں دیکھتے ہوں، جس کے گانے سنتے ہوں، اس نے کیا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے۔ 40 سال تو انسان کی ایسی ایج نہیں ہے، 40 سال میں تو پھل کھانے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں۔ ایک سنگر جب وہ گانے سیکھتا ہے تو 40 سال میں اس کی ایک پیک کی عمر ہوتی ہے۔ ایک ایکٹر اگر کامیاب فلمیں بنا رہا ہے تو 40 سال اس کی ایک پیک کی عمر ہے، اس نے ترقی کرنا اصل میں شروع کی ہے، پھل کھانا شروع کیا ہے، اور ایسے موقع پہ موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو قبر میں اتار کے چلا جائے، انسان کے سارے خواب چکنا چور ہیں۔ یا تو اللہ بہت ظالم ہے کہ انسان کی جب ترقی کا وقت شروع ہوا، پھل کھانے کا وقت شروع ہوا، اس اللہ نے ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا، ساری محنتوں کو ضائع کر دیا۔ یا تو معاذ اللہ ظالم ہے، یا ہمیں اللہ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ ہم اس دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اکلوتا بیٹا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگی، بڑی اچھی جاب کا جو پہلا دن تھا اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کرنٹ لگنے سے۔ تو مجھے کہنے لگے میری تو ساری محنت برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے اگر اپنے بچے کو آخرت کے لیے پڑھایا تھا، کہ میں اپنے بچے کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے حکم دیا والدین کو کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھی تعلیم دو تاکہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھی کامیاب لائف گزار سکیں۔ اگر آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے بچے پر یہ سب کچھ خرچ کیا تھا تو بچہ اگر مر بھی گیا، اللہ کے ہاں آپ کا اجر ضائع نہیں ہوا ہے، اللہ آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زوجہ کو جو کھلاتے ہو، ایک لقمے پہ تمہیں اجر ملتا ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، جو بھی خدمت کر رہے ہیں آپ ان کی، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمارے نیک لوگ جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، اور اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو،
ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे इसका बदला नहीं मांगते, शुक्रिया थैंक यू भी नहीं कहना है तुमने, हम तुम्हें इसलिए खिला रहे हैं कि कल एक दिन आएगा क़यामत का जिस दिन हमें अदालत के कटहरे में खड़ा होना है, अपने अमाल का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। उस दिन हम अपना ये अमल अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं कि अल्लाह हमने भूखों को खिलाया था। तो बड़ी से बड़ी नेकी अगर अल्लाह के लिए की जाए तो मौत के बाद वो महफूज हो जाती है, मौत की वजह से वो अजर आपका ज़ाया नहीं होता। और बड़े से बड़ा नेक काम अगर अल्लाह के लिए नहीं किया, आपने दुनिया के लिए किया है, तो मौत उन तमाम कामों पे पानी फेर देती है और बताती है कि जिसके लिए आपने किया था वो आपको कब्र में फेंक के या लकड़ियों में जला के चले जाएंगे और आगे की मंजिल में वो आपके काम आने वाले नहीं। शोबिस की दुनिया से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जाहिर है वो ये सब कुछ अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के किसी मज़हब में, ना हिंदू मज़हब में, ना इस्लाम में, ना ईसाइयत में, ना यहूदियत में, किसी मज़हब में भी शोबिस की दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है इसका कोई हिस्सा नहीं। आपने कभी किसी हिंदू से नहीं सुना होगा, हिंदू पंडित से, कि वो ये कह रहा हो कि नाच गानों से और इस तरह फिल्में बना के, ड्रामे बना के मुआशरे में बेहयाई को प्रमोट करने से भगवान खुश होता है। कभी किसी हिंदू से भी नहीं सुना होगा, कभी किसी ईसाई से नहीं सुना होगा कि अल्लाह खुश होता है, खुदा खुश होता है ऐसे कामों से। कभी किसी मुसलमान से नहीं सुना होगा, मुसलमान स्कॉलर से नहीं सुना होगा, आलिम से नहीं सुना होगा कि नाच गानों में और इस तरह जिस तरह आजकल फिल्मों में लड़कियां अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं और जिस तरह जो कुछ बेहूदगी मुआशरे में इन फिल्मों के जरिए फैलाई गई है, एक ख़ानदानी निज़ाम हमारा पूरा तबाह होकर रह गया। ये सब कुछ से अल्लाह राज़ी होता है। कभी किसी मुस्लिम स्कॉलर से आपने नहीं सुना होगा। सारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खुदा बेहयाई को पसंद नहीं करता। शोबिस की दुनिया में जो लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें ये तो जहन में रख लेना चाहिए कि आपके इस अमल का आखिरत में अल्लाह के यहाँ कोई हिस्सा नहीं। दुनिया आपके इस अमल से खुश होती है और दुनिया में आपको उसका बदला मिल जाता है, इज्जत की सूरत में और शोहरत की सूरत में। लेकिन आँख बंद होते ही आपकी इज्जत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ज़मीन पोस हो जाती है और आपकी सारी इज्जत एक सेकंड में, इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। तो क्यों ना ऐसे रास्ते को इख्तियार किया जाए जो मौत के बाद भी चलता रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दरख्त लगाया, देखें मैं 2 हदीसें पेश करता हूँ आपके सामने। एक तरफ हदीस में आता है एक सहाबी दरख्त लगा रहे थे, आपने फरमाया ये तो कई साल के बाद फल देगा, तुम्हें क्या मालूम कि तुम उस वक्त तक जिंदा भी रहोगे कि नहीं रहोगे। यानी इतनी दूर की सोच रहे हो और पल की खबर नहीं है। कहते ना सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, कल का तुम्हें पता नहीं है जिंदा रहोगे और तुम इतने साल बाद की सोच रहे हो, पता नहीं उस वक्त तक तुम जिंदा रहो या नहीं रहो। इस हदीस से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के मैसेंजर हैं वो दरख्त लगाने से गोया रोक रहे हैं, अगर सिर्फ यही हदीस हो हमारे सामने। लेकिन दूसरी हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया और मर गया तो कोई नुकसान की बात नहीं है, खुद फल बेशक ना भी खाए। नबी ने फरमाया कि अगर जब तक उस दरख्त से परिंदे और जानवर भी फ़ायदा उठाएंगे, इंसान तो दूर की बात, जब तक उससे परिंदे और जानवर फ़ायदा उठाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्त लगाने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। अब आप देखें एक हदीस में दरख्त से रोका जा रहा है, एक में दरख्त लगाने की तरगीब दी जा रही है। फ़र्क क्या है? नीयतों का फ़र्क है। पहले जब आप दरख्त लगा रहे थे आपका मकसद इंसानियत की खिदमत नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। और जब आप दोबारा दरख्त लगा रहे हैं, दूसरी जो हदीस में मिसाल दी है उसमें आपका मकसद अपनी ख्वाहिशात भी लेकिन इंसानियत की खिदमत भी। इंसानियत की खिदमत और वो खिदमत जिसमें अल्लाह को राज़ी करना मकसद है, उस खिदमत में अगर आप मर भी जाते हैं कोई गम की बात नहीं है, आपका वो दरख्त क़यामत तक आपको अजर पहुंचाता रहेगा। दरख्त एक मिसाल है, दरख्त से मुराद कोई भी खैर का काम। शोबिस की दुनिया से जो लोग वाबस्ता हैं, पहली बात तो ये, मैं अपने आप को किसी से अफजल नहीं समझता। मैं नहीं कहता कि जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग हैं मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ और वो मुझसे कमतर है, ये तो आखिरत में ही पता चलेगा। अमाल का मदार इंसान के खात्मे पर होता है, आखिर वक्त उसका कैसा गुजरता है। हम में से कोई किसी के बारे में दावे नहीं कर सकता, लेकिन इन वाक़यात से मुझे भी इबरत हासिल करनी चाहिए, आप लोगों को भी, कि ये दुनिया है, कैसे एक शख्स तरक्की की इंतहा को पहुंचता है और अभी फल खाने का वक्त आता है लेकिन मौत उसे पिछाड़ देती है। मौत से कोई नहीं लड़ सकता और उसे कब्र के गड्ढे में उतार देती है, उसे लकड़ियों में जलवा देती है और उसका सारा कैरियर 2 मिनट के अंदर ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे रास्ते को हमें इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें मौत के बाद भी हमारा सिलसिला चलता रहे। वो रास्ता है जिससे खुदा खुश होता है। इंसान तो देखें ज़िना से भी खुश होता है, इंसान तो बदकारी से, आप चोरी करके लाके किसी को पैसे देना शुरू कर दें, जिसको आप देंगे वो खुश होगा इससे। लेकिन बुराई को कभी भी मुआशरे में उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती कि लोग इससे खुश हो रहे हैं। आप शराब की दुकानें बंद कर दें, बहुत से लोग नाराज़ होंगे आपसे, लेकिन खुदा खुश होगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है
کہ خدا کن کاموں سے خوش ہوتا ہے. خدا کے کسی کرے گا. موت سے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. موت کے بعد ہمیں مہلت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.